Hello, welcome friends. My name is Avinash Gorakshekar and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face-to-Face series. Friends, in these episodes, we introduce to you emerging companies from emerging sectors and we talk to the promoters of such companies. We talk to them about their business plans, their growth journey. And in this process, we get to know the companies in a much better way. And friends, today we've got a very interesting company which is going to hit the SME capital market very soon. The company's name is is Green High Tech Ventures Limited, and we have the pleasure of having the top management team, the promoter and managing director, Mr. Naved Iqbal. नावेद भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको समय दिया. आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि इस छोटे Thank से interview में हमको बहुत सारी जानकारी आपके कंपनी के बारे में हमको पता लगे. Hello, sir. Pleasure is entirely mine. ठीक है. Let's तो start and we'll try to give you a brief about what we do, what we are, and what we look forward to. ठीक है नावेद भाई, first question which is very elementary. If you could explain to us, what is the business model of the company? We have read the prospectus presentation. I understand we are into trading of biofuel and ethanol. Can you tell us, what is the business model? How do you run this business? And secondly, what is the positioning of our company? हमारी कंपनी की पोजीशनिंग अभी डोमेस्टिक मार्केट में क्या है? और इंडिविजुअली सर, ये जो बिजनेस आपने शुरू किया है उसकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए. आपने ये कैसे शुरू की, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए, सो दैट ऑल दैट विल हेल्प आवर इन्वेस्टर्स. Okay. Sir, I'm born and brought up in Varanasi. So this company, Green High Tech Venture Limited, is my baby. I started this as a partnership firm, Green Tech Hydrocarbons, way back in 2010. एंड शुरू से ही इसमें हमारा ग्रीन एनर्जी का ही काम रहा है, रिसाइकलिंग, रिन्यूएबल एनर्जी का. और 2010 में ये स्टार्ट हुआ था एक टायर पैरालिसिस यूनिट लगा करके, और जो हमने 2016 तक चलाया. बैच टाइप रिएक्टर चाइना से इंपोर्ट किया था मैंने, एंड दैट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया. उस टाइम पे गुजरात में ये प्लांट्स थे. So I was manufacturing biofuels, which was recycled oil for furnace and various industrial applications. उसमें कुछ pollution के issues थे जिसके वजह से I kept on looking what next and how better can I operate, because I had realized that recycling and green energy is important and it has a very great future ahead. So then we started doing trading of biodiesel, procuring from biodiesel manufacturers, mostly from some factories in Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, and UP, and selling across to industrial buyers for heavy machineries for gensets. And by 2017-18, when the ethanol story was picking up, to put up an ethanol plant was way beyond our means at that time, because a typical ethanol plant would cost around 100 crores, and which we could not afford at that time. So we placed ourselves as a intermediary between the government distilleries, where all the sugar federations, they have their distilleries co-located with their sugar plants, and they adopted a PPP, public-private partnership model, where the capex was governments and the opex was from private parties like ourselves. And there we could find our niche, where we do the operations and maintenance of these distilleries manufacturing ethanol for UP Sugar Federation, for Rajasthan Sugar Federation. And these ethanol is then sold to the oil marketing companies. So our role is mostly about running these factories, where the whole of working capital is ours, the manpower is ours, the fuel, chemicals, is everything from our end, and we manufacture, and then the federation sells it to oil marketing companies like IOCL, BPCL, and HPCL. So it is a win-win situation. We make money, the government makes money, the sugarcane, जो गन्ना किसान है उनको उनके पैसे टाइम पे मिलते हैं, पोल्यूशन के लिए फायदेमंद है, देश को आत्मनिर्भर है ईंधन पे, तो इट्स अ विन-विन फॉर एवरीवन. चलो, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया नाविद भाई. अभी एक बात बताइए, अभी आपने बोला गवर्नमेंट डिस्टिलरीज और शुगर फैक्ट्रीज, तो मैं मान के चलूं कि हमारे जो मेन कस्टमर्स है, अगर एक दो नाम आप आपको बताए हमारे व्यूअर्स को, तो कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट कस्टमर्स है जहाँ पे हम ये एथेनॉल का काम करते हैं? सर देखिए, ऐसे तो पूरा ही मार्केट, जहां जहां पे जिस बेल्ट में गन्ना होता है वहां शुगर फैक्ट्रीज है. वहां पे इंडिया में ऐसी 83 डिफरेंट फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की. अभी हम राजस्थान शुगर फेडरेशन और यूपी शुगर फेडरेशन के साथ काम कर रहे हैं. हमारा राजस्थान शुगर फेडरेशन का टेंडर अभी हाल में कंप्लीट हुआ, और अभी दोबारा टेंडर आचार संहिता की वजह से नहीं आया है,
जो कि रिन्यू हो जाएगा पोस्ट इलेक्शंस। यूपी शुगर फेडरेशन में हमारे पास एक डिस्टिलरी ऑलरेडी थी पूर्वांचल में घोसी की, और हमें इस साल एक और फैक्ट्री वेस्टर्न यूपी में नानौता की मिली है जो हमने हैंडओवर ली है। सो हम दोनों फैक्ट्रियां ये यूपी शुगर फेडरेशन की ऑपरेट कर रहे हैं। अभी तक हम राजस्थान की भी एक फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे थे जो कि अब इलेक्शन के बाद रिन्यू हो जाएगी। तो अगर मेरे पास that is the reason why I have come to this SME listing, to get a better corporate governance, a better public outlook. If I am a company with availability of capital and better talent to attract and retain, then I'll be able to get more factories. Maybe मैं अगले 5 साल में 10 फैक्ट्रियां 10 अलग अलग स्टेट में ले पाऊं और चला पाऊं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और हमारी जैसी कंपनी जिनके पास टेक्निकल एलिजिबिलिटी हो और जो टेक्निकली साउंड हो बिड करने के लिए, ऐसे काम करने वाली कंपनीज ही पूरे देश में 4-5 हैं जो इस पैरामीटर पे काम कर सकती हैं। तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, वो हमारे कंपनी पे ऑन रोल हैं। और वी लुक फॉरवर्ड कि हम आगे और भी फैक्ट्रियां ले पाएंगे इस मॉडल पे। और प्लस इथेनॉल के बारे में बतलाने की कोई खास जरूरत है नहीं, आज पूरा देश जानता है कि इथेनॉल का फ्यूचर ब्राइट है सर। नाविद भाई, अभी बायोफ्यूल के बारे में बताइए। बायोफ्यूल ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी क्या करती है? सर बायोफ्यूल्स में जो इंडस्ट्रीज और माइनिंग कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, इनको ईंधन के रूप में बायोफ्यूल्स की आवश्यकता होती है। खासकर जैसे बायोडीजल की अगर बात करें तो वो फैक्ट्री जो बायोडीजल बनाती हैं उनका 100% क्वांटिटी IOCL या BPCL जैसी कंपनीज नहीं अंडरराइट करती। वो 60, 70, 80% अंडरराइट करती हैं, तो उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है जो उनको बेचना होता है। प्लस वो कस्टमर्स है जिनको डीजी चलाना है या हेवी इक्विपमेंट चलाना है और वो बायोडीजल ले सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ता बैठता है, इकोनॉमिकल होता है। तो हर कस्टमर को हर दिन रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फैक्ट्री को तो हर दिन मटेरियल बेचना है। तो वहां पे हमारी जैसी इंटरमीडिएट्स के रोल में आती है कि हम प्रोक्योर करते हैं मैन्युफैक्चरर से और अक्रॉस ज्योग्राफीज माल बेचते हैं। Although trading is a part of our business, but our focus is to become a technically sound uh, player in the green energy sector, which we are striving for. नहीं, ठीक है, समझ गया। नाविद भाई, अभी मेरे को बात पूछिए, ऑन ग्राउंड जो मार्केट पोटेंशियल है एथेनॉल का, बायोफ्यूल का, अगले 3-5 साल में आपने काफी समय इस इंडस्ट्री में काटे हैं, आपको ज्यादा नॉलेज है। मेरे को बताइए, अगले 3-5 साल में इंडिया में इसका क्या ग्रोथ पोटेंशियल है? एथेनॉल तो हमको सभी को पता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लेंडिंग एथेनॉल पेट्रोल में हो। 26 तक हम 20% की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहा है। बट बायोफ्यूल को लेके और एथेनॉल को लेके हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो? क्या इसका बेनिफिट हमारी कंपनी को अगले 3-4 साल में मिलेगा? ऐसी कोई स्ट्रेटेजी आपने फिक्स की है? सर डेफिनेटली, एज आई ऑलरेडी मेंशन, हमारा आउटलुक ही IPO करने का इसलिए था ताकि हम अपने संसाधनों को बढ़ा सकें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने बहुत बड़ी है। आज देश में अगर मैंने आपको बताया कि 83 तो गवर्नमेंट डिस्टिलरीज हैं, इसके अलावा प्राइवेट प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अगर 500 फैक्ट्रियां हैं तो हमारी जैसी कंपनी जो टेक्निकली साउंड तो है और ये ऑपरेशन मेंटेनेंस कर सकते हैं हम अच्छे से। सो एज एज एन OEM पार्टनर हमारी सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और शायद हमारी ये कोशिश है आने वाले 5 सालों में हम 10 डिफरेंट लोकेशंस पे ऑपरेट करें विद अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ 1000+ प्रोफेशनल्स विद अस, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। प्लस जो मैं फैक्ट्रियां सर चला रहा हूँ, आपने पूछा मैं कहाँ देखता हूँ अपनी अपॉर्चुनिटी आगे, तो जैसे ये जो फैक्ट्रियां मैं चला रहा हूँ सर, वहां पे बायोगैस के प्लांट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, जहाँ पे मैं उन बायोगैस को के प्लांट्स को खुद ऑपरेट कर रहा हूँ। बायोडाइजेस्टर्स लगे हैं, मैं वहां से बायोगैस बनाता हूँ, उसको गैस इंजन में यूटिलाइज करके पावर प्रोड्यूस करता हूँ या उसको फर्नेस में बर्न करता हूँ। और बायोगैस इज ऑल्सो डेवलपिंग लाइक एनीथिंग। So to put up a biogas would be the next biogas plant would be the natural next step for us, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल है, टीम है, टेक्नोलॉजी है, उसकी रनिंग का एक्सपीरियंस है। So we'll be encashing on that opportunity as well in times to come. नहीं, बिल्कुल बढ़िया। इनफैक्ट बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया नाविद भाई। अभी मेरे को एक बात बताइए नाविद भाई कि गोइंग फॉरवर्ड, ये जो अभी बायोफ्यूल है, फिर आपका एथेनॉल मार्केटिंग है, क्या ये मान के चले कि होपफुली आपको कैपिटल मार्केट से ये इशू से पैसा मिलता है, तो आने वाले 3-4 साल में हम ये मान के चले कि अभी तो आपके पास 2-3 बड़े एंकर कस्टमर है, और 4-5 कस्टमर्स कंफर्टेबली आएंगे और अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ऑब्वियसली उस हिसाब से बढ़ेगा? तो मोटा मोटी, विदाउट पुटिंग नंबर, नाविद भाई।
सर डेफिनेटली अगर आप हमारे पास रिकॉर्ड्स भी देखेंगे, दो हमारा टॉप लाइन में कुछ हिट रहा है पर हमारा बॉटम लाइन काफी इंप्रूव किया है। उसका रीजन यही रहा है कि हम प्योरली ट्रेडिंग से प्योरली मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गए हैं, ऑपरेटिंग एट वेरी हेल्दी मार्जिन्स। और वी हैव बिकम, आई वुड कंफर्टेबली से वी आर नाउ मोर टेक्निकली साउंड कंपनी विद स्ट्रॉन्गर बेस। Also, once we get access to better capital, we are definitely we in fact हमारे पास आज की डेट में भी अच्छी लीड्स हैं जिसको हम अभी फौरन यस नहीं बोल रहे हैं, बट we have a vision to operate at least in 10 different locations in coming 5 years. So हर साल हमें 1 से 2 यूनिट ऐड करनी है ताकि हम अगले 5 सालों में 10 लोकेशंस पे रहें। बिल्कुल बिल्कुल। नाविद भाई, अभी एक बात बताइए, ये इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? देखिए, हर बिजनेस में कंपटीशन तो होता ही है, तो ये जो ओएनएम स्पेस है जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे मोटा मोटी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कितनी है? या मार्केट इतना बड़ा है कि सभी के लिए जगह है ग्रो करने के लिए? और दूसरी बात, हमारी कंपनी जब कस्टमर्स के साथ काम करती है तो हम क्या डिफरेंशिएशन कस्टमर को ऑफर करते हैं? यानी हम दूसरों से अलग कैसे हैं क्वालिटेटिवली? अगर नंबर की बात छोड़िए, अगर क्वालिटेटिव में आपको बताऊं, आप इतने साल से कंपनी चला रहे हो, तो हम हमारा काम बेहतर कैसे करते हैं? अगर 1-2 पॉइंट्स आप शेयर करो। सर मैं फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का रहा है, मेरा पहला जर्नी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रहा है, तो मैं प्राइवेट फैक्ट्रीज चलाने का एक्सपीरियंस मुझे है। और ये जो स्पेस है इसमें टेक्निकली साउंड रहना, फैक्ट्री चलाने के एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप करना, ढाल पाना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना, प्रोएक्टिव प्लानिंग करना, तो अगर मैं कॉम्पिटिटिव एज मुझे है तो स्पेस बहुत है इसमें काम करने का। मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि मेरे जैसे अगर 10-20 कंपनी और आती है तो स्पेस में कोई प्रॉब्लम होगी। हैविंग सेड दैट, हमने अपने लिए एक निश तैयार किया है। अभी आज की डेट में यूपी शुगर के पास 8 डिफरेंट डिस्टिलरीज हैं, पर जो डिस्टिलरी हम चला रहे हैं वो इन 8 डिस्टिलरी में बेस्ट परफॉर्मिंग है प्रोडक्शन वाइज, यील्ड वाइज। तो प्लस वी वैल्यू आवर ह्यूमन रिसोर्स अलॉट। तो जो भी बंदा हमें जिसने भी ज्वाइन किया, वी स्टिल हैव पीपल हु हैव बीन वर्किंग सिंस 2010 विद मी। तो हम अपनी ह्यूमन कैपिटल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वही हमारी पूंजी है। तो वी लुक फॉरवर्ड कि विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। नाविद भाई, अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल्स पे आते हैं। जैसे आपने अभी थोड़ा सा जिक्र किया कि टॉप लाइन थोड़ा सा हमारा कम है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हो चुके हैं और काफी अच्छी तरह से इंप्रूव हो चुके हैं। तो एक कारण तो है कि हम ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये जो फोकस है, आपको क्या लगता है अगले 1-2 साल में यही फोकस रहेगा और ट्रेडिंग विल टेक अ बैक सीट? इज दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली फ्रॉम यू? सर मैन्युफैक्चरिंग हमारा मेन बेस है और ट्रेडिंग इज ओनली अ सपोर्ट एक्टिविटी। तो क्योंकि हम उस स्पेस में हैं तो लोग हमें उससे जानते हैं, हमारे पास नेचुरल सिनर्जी है, इसलिए हम वो साथ साथ करते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग का बेस है ऑब्वियसली वही ज्यादा टेक्निकल काम है, उसमें ही बेटर मार्जिन हैं और वही हमारी पहचान है। हमारा विजन ये वी सी ourselves as a technology company. That is the reason Green High-Tech Ventures, the name itself signifies with that. So all this ethanol, distillery, biogas, ये स्पेस ही है जहां पे हमें अपनी पहचान बनानी है आगे जाके। So we don't want to be known only as a trading company, or that is the reason why we have compromised a little on the top line, but we have managed to sustain, even grow our bottom line. नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट नाविद भाई, एक रिलेटेड क्वेश्चन इससे है कि अभी तो मार्च का ईयर तो मोटा मोटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हम अप्रैल में है। लेकिन आने वाले साल में होपफुली, विदाउट गिविंग नंबर्स, अगर आप हमको बताएं कि मार्जिन अगर हम इस तरह से ही मेंटेन करेंगे, क्योंकि मार्जिन की जो ट्रेजेक्टरी है वो बहुत ही अच्छी है, तो ये मार्जिन आपके हिसाब से होपफुली विल बी एबल टू मेंटेन एंड कंटिन्यू एंड सस्टेन दीज मार्जिन होपफुली? Yes, sir, these margins are sustainable, and with our past records, we have kept on learning a lot from our mistakes as well. तो कुछ गलतियां कहीं कहीं पे थी जिनको अवॉइड करेंगे, तो not just to sustain these margins, we will even be able to add up to that, और शायद हम और बेटर कर पाएंगे उससे जो अभी हमारा रिकॉर्ड रहा है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस इंटरव्यू का है, जो सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, नाविद भाई, अगर थोड़ा सा पब्लिक इशू के बारे में बताइए कि कितना बड़ा इशू है, कभी खुल रहा है, क्या प्राइस पे है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा हम किस लिए रेस कर रहे हैं? सर ये बी लाइन कैपिटल हमारा लीड मैनेजर है, और ये इशूज 6.3 करोड़ का फंड रेज कर रहे हैं हम 12,60,000 शेयर्स
वी आर ऑफरिंग फॉर सेल। इसमें कोई भी ऑफर्स नहीं है, सारा फ्रेश शेयर का इशू है और 50 रुपए का प्राइस है। और ये पैसा हम रेज कर रहे हैं ऑब्वियसली हमारे वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए और कुछ हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। मोस्टली ये हमें आगे एक्सपेंशन करने में हेल्प होगा। अगर हमारे पास बफर वर्किंग कैपिटल होगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल से बिजनेस बढ़ेगा भी और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। The IPO is scheduled to open on 12th of April, 4-5 days from now, and will close on 16th of April, and the listing is scheduled on 22nd of April. बिल्कुल। तो नावेद भाई, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने जिक्र किया, वर्किंग कैपिटल। सर, नॉर्मली हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल साइकिल कितनी लंबी होती है? आपने बोला वर्किंग कैपिटल इज द मेजर कॉस्ट, हमारे लिए वही सबसे बड़ा खर्चा है। तो नॉर्मली सर 3 महीने का वर्किंग कैपिटल साइकिल है, क्योंकि हमारा ये एक सीजनल प्रोड्यूस है। हमारा रॉ मटेरियल भी सीजनल प्रोड्यूस है, हमारा फ्यूल भी सीजनल प्रोड्यूस है। सो उसमें उसका कैरिंग कॉस्ट बहुत है और उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है सर। द मोर वर्किंग कैपिटल वी हैव द बेटर मार्जिन विल बी देयर। क्योंकि आज अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेस में जिसमें सीजनल प्रोडक्शन होता है, तो अगर मुझे चावल खरीदना है फॉर एग्जांपल और वो सीजन टाइम पे 10 रुपए का है, तो वो ऑफ सीजन में 15 रुपए का खरीदना पड़ेगा। बल्कि अगर सीजन टाइम में 10 रुपए का मटेरियल खरीद कर स्टॉक किया है, तो वो ऑफ सीजन में उसकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ के 11 रुपए होगी। तो अगर वो हम अपने पैसे से खरीद के स्टॉक करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूवमेंट होता है और कॉम्पिटिटिव एज मेंटेन रहता है। नहीं, समझ गया मैं। आखिरी सवाल नावेद भाई, जो आज के लिए जो हम सारे प्रमोटर्स को पूछते हैं, आपने काफी लंबे समय तक ये इंडस्ट्री में काम किया है, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? लाइक एवरी बिजनेस हैज गॉट सम रिस्क। कोविड को तो छोड़ दीजिए, कोविड के टाइम पे तो सभी को तकलीफ थी, बट अगर नॉर्मल बिजनेस देखें तो रिस्क क्या है? सर फ्रॉम व्हाट आई बिलीव, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सेंसिटिव आइटम है, तो सबसे बड़ा रिस्क इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है। लकीली अनफॉर्चुनेटली अभी जो देश में जो माहौल है वो बहुत ही प्रो ग्रीन है, प्रो ग्रीन एनर्जी है, प्रो रिसाइकलिंग है। सो जो एक रिस्क का फैक्टर है वो अभी दूर दूर तक दिखता नहीं है, उसमें प्लस ही प्लस पॉइंट्स दिखते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का अब ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं अभी आत्मनिर्भरता पे, मेक इन इंडिया पे, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी पे, ग्रीन एनर्जी और एनवायरमेंट पे, वो सारा इस सेक्टर के लिए बून ही है। सो जो रिस्क का सबसे बड़ा एलिमेंट है वो भी आने वाले टाइम में शायद सामने नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक आपके लिए, आपके इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना बिजनेस में रिस्क कम है उतना ग्रोथ के लिए भी पोटेंशियल काफी बड़ा होता है। तो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। तो नावेद भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने को थैंक और यू सर, जानकारी मिली। मैं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस आपको, आपकी पूरी टीम के लिए और आपके फोर्थकमिंग आईपीओ के लिए भी मेरी बेस्ट विशेस। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।